Hi everyone, my name is Ravish and I teach philosophy and literature, and welcome to my YouTube channel. So in this video I'm going to talk about Romanticism, and before I begin this lecture I would like you to go and subscribe to my channel so that I can be motivated and bring more such videos for you guys. So before I start, we need to understand what is Romanticism and how it came in existence, right? So Romanticism, we can say that it was an artistic and intellectual moment. It was also a kind of revolt against New Classicism and Enlightenment. Now these are very two different terms and also very difficult term, right? So let's understand. If you're a student of literature, then you must be aware of the New Classical age, right? So we are talking about that New Classical age because it was a kind of revolt against New Classical. Because what New Classicals were doing was that they were very rational thinkers. They were very they used logic in everything. Same as Enlightenment. Enlightenment is also a kind of moment where people or philosophers, they started using their intellectual brain, their rational brain, and they wanted to understand everything. They wanted to understand how human being works, how human mind works, how this universe works, right? It was basically more of a scientific evolution, more of a scientific and intellectual evolution. But romantic writers, they wanted to escape from it. They wanted to go back to the nature. They wanted to understand the nature. So in a way, we can say that romantics, they wanted to escape from reality. Because what was the reality? Reality was an industrial revolution. Because industrial revolution was about to happen, especially in Europe. And people were coming from the village to the town area. And this was problematic for the romantic periods. This was problematic for the romantic poets. They saw this as a drawback, and they started writing about nature. They wanted to escape from all of it. They wanted to escape from what was happening, especially in Europe, especially in the city area. So they were a group of writers. They wanted to talk about nature. They wanted to talk about the personal growth. They wanted to talk about their personal feelings. They wanted to talk about love. They wanted to talk about our thoughts and sublime and so many different things that makes us who we are, right? Now let's see some of the also there's another point that we need to remember is that when we talk about romanticism, especially in England, then we can say the romantic period in British literature begins roughly around 1780 to 1832. But in some book you will find that romantic literature starts after the publication of the lyrical ballads. So lyrical ballad, it was a kind of book. It was a collection of books published by two prominent writers. One was S.T. Coleridge and another was William Wordsworth. So they both collaborated together and they published a book called the Lyrical Ballads, and this marked the beginning of the Romantic age, especially in the British literature. Now let's see some of the characteristics and the element of the Romantic age in literature. So the first important characteristic was the emphasis on emotions and individualism. So जितने भी रोमांटिक्स एज के राइटर थे उन्होंने अपने इमोशंस पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया. उनके इमोशंस और उनकी इंडिविजुअलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट थी. सो वी कैन से कि रोमांटिक लिटरेचर प्रायोरिटाइज द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस. जैसे कि जॉन कीट्स, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने अपनी इमोशंस को, है ना, उनकी जो अपनी इंडिविजुअल टैलेंट था, उनका जो अपना इंडिविजुअल थॉट था, इमोशन था, उनके बारे में उनके ऊपर उन्होंने फोकस किया, उनके बारे में उन्होंने लिखा. ठीक है. सो दे रोट or they focused on their personal feelings, personal thoughts, personal ideas. And also the writer explored the depth of the human emotions. जब हम इमोशन की बात करेंगे, जब हम इंडिविजुअलिटी की बात करेंगे, तो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, है ना, और उसके डेप्थ में जाने की बात होती है. तो जितने भी रोमांटिक एज के राइटर थे, दे टॉक्ड अबाउट ह्यूमन इमोशन, दे टॉक्ड अबाउट लव, दे टॉक अबाउट पैशन, डिस्पेयर, लॉन्गिंगनेस. सो जो भी चीज़ें हम फील करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, है ना, वो सब चीज़ रोमांटिक एज के राइटर लिखा करते थे. उन सब चीज़ों के बारे में रोमांटिक एज के राइटर लिखा करते थे. सो वी कैन से इट वाज एन एम्फेसिस ऑन इमोशन एंड इंडिविजुअलिज्म. ठीक है. नेक्स्ट, दे रिजेक्टेड द रैशनलिज्म एंड इनलाइटनमेंट, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि इनलाइटनमेंट क्या था. इनलाइटनमेंट बेसिकली
आह मोमेंट होता है, जब हम कहते हैं ना आह मोमेंट, मतलब जब हमें रियलाइज़ होता है कि मैं समझ गया सारी चीज़ें, है ना। फॉर इंस्टेंस जब आप लोग ये वीडियो देख लोगे तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will realize that you know about romanticism, you know enough about romanticism that you can write an article on it. So this realization is basically an enlightenment, because you feel that you understood something. So enlightenment was also an artistic moment, it was also a philosophical moment. जब फिलोसफर को लगने लगा कि अब मैं चीज़ों को जानने लगा हूँ, अब मैं चीज़ों को समझने लगा हूँ, ठीक है. सो इन अ वे वी कैन से दे रिबेल्ड अगेंस्ट द रैशनलिज्म एंड स्ट्रिक्ट लॉजिक. उनको स्ट्रिक्ट लॉजिक पसंद नहीं था. And also the moment was a reaction against the perceived constraint of the Enlightenment through and desire to explore the mysterious and complexities of human existence. मतलब कि जो human existence है, जो human complexity है ना, इंसान जब बड़ा होता है या इंसान जब ग्रो करता है तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर उनके अंदर आता है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर उनके अंदर आता है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस उनके अंदर आता है. और ये जो इमोशंस एंड फीलिंग्स लेके आते हैं, ये जो चेंजेस हैं, वो जो इमोशन लेके आते हैं, उनके बारे में इन्होंने बात करी. तो जितने भी रोमांटिक एज के राइटर थे, दे बिलीव्ड इन देमसेल्व्स, दे बिलीव्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी टू थिंक, इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द इमोशनल एंड इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, राइट. अब दे ऑल्सो सेलिब्रेटेड द नेचर भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर ऑल द रोमांटिक्स. उनको वो हमेशा नेचर में जाना चाहते थे. दे ऑलवेज वांटेड टू escape स्पेशली इन नेचर. वो चाहते थे कि जब भी उनके थॉट्स, जब भी उनके इमोशंस, वो सब के सब नेचर से इंस्पायर होते थे. इसलिए कह सकते हैं नेचर प्लेड अ सेंट्रल रोल इन रोमांटिक लिटरेचर. नेचर जो था वो सेंट्रल रोल था रोमांटिक लिटरेचर के लिए, क्योंकि वो इंस्पायर लेते थे नेचर से. वो गाँव में चले जाते थे और गाँव में जाके चीज़ों से इंस्पायर होते. जैसे एक वर्क है टिंटन एबे. तो टिंटन एबे इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस जहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ जब वापस गए थे तो वहाँ पे उन्होंने इंस्पिरेशन आया, अचानक से एक इपिफनी आया, उनके अंदर थॉट आया और उन्होंने उसके बारे में लिख दिया. जैसे एक पोएम आपने पढ़ा होगा डेफोडिल्स, है ना, डेफोडिल्स. तो डेफोडिल्स के अंदर भी क्या था, जब वो अपनी बहन के साथ, अपनी सिस्टर के साथ जब वो घूमने जा रहे थे, है ना, तो उन्होंने बहुत सारे डेफोडिल्स देखा. बहुत सारे डेफोडिल्स, बेसिकली इट्स अ फ्लावर. उन्होंने डेफोडिल्स फ्लावर का एक घाटी देखा और जब वो वापस घर आए तो वो काफ़ी इमोशन से भर गए थे. तो उन्होंने ये पोइम लिखा डेफोडिल्स. नाउ नेचुरल सेटिंग हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है. जब भी ये पोइम लिखते हैं, जब भी रोमांटिक्स पोइट जब भी पोइट्री लिखते हैं तो उनके अंदर उनकी जो सेटिंग्स होते हैं हमेशा ही नेचर से रिलेटेड होता है. वो मेटाफर यूज करते हैं, है ना, ह्यूमन इमोशंस, एक्सपीरियंस, ये सारी की सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं नेचर के साथ. एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ फोकस ऑन द सबलाइम. अब देखिए सबलाइम क्या है. सबलाइम इज़ अ फिलोसॉफिकल मोमेंट, और यू कैन से इज़ अ फिलोसॉफिकल वर्ड जिसके अंदर ऑ और फियर एक साथ होता है. जैसे फॉर एग्जांपल जब हम माउंटेन के ऊपर खड़ा होते हैं, व्हेन यू स्टैंड ऑन अ माउंटेन, व्हेन यू स्टैंड ऑन अ क्लिफ, जब हम देखते हैं आसमान को, क्योंकि आसमान काफ़ी वास्ट होता है, माउंटेन्स काफ़ी वास्ट होते हैं, समंदर काफ़ी वास्ट होता है, और जब हम उसको देखते हैं तो हमारे अंदर एक ही साथ दो फीलिंग्स आते हैं. एक फियर आता है और एक आव का फीलिंग आता है ना, आव एंड फियर एक साथ आता है. तो हम खुश भी होते हैं और हमें डर भी लगता है. तो ये जो दोनों फीलिंग्स एक साथ जो आता है उसी को सबलाइम कहते हैं, ठीक है. तो सबलाइम किसी भी चीज़ को हो सकता है. जैसे ये बादल, काफ़ी सारे बादल, जब काफ़ी सारे डार्क क्लाउड्स आ जाएंगे, जिसको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं, जब काफ़ी सारे डार्क क्लाउड्स आ जाएंगे तो वो भी एक तरह से सबलाइम क्रिएट करता है. सबलाइम इज़ बेसिकली अ फीलिंग ऑफ ऑ एंड फियर एक साथ, ठीक है. तो दे फोकस्ड ऑन द सबलाइम. नेक्स्ट दे फोकस्ड ऑन द इमेजिनेशन एंड फैंटेसी. उनको इमेजिन करना काफ़ी पसंद था, है ना. फैंटेसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें वो सोचते थे, अपने माइंड से इमेजिन करते थे. से द रोमांटिक राइटर्स वैल्यूड द पावर एंड इमेजिनेशन एंड ऑफन एक्सप्लोर द फैंटास्टिकल, ड्रीम लाइक एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स. मतलब वो एक्सप्लोर करते थे सुपर नेचुरल एलिमेंट को, फैंटास्टिकल और ड्रीम लाइक थॉट्स को, है ना. उनके अंदर काफ़ी सारे ड्रीम्स होते थे. जैसे एक कुबला खान है, एक पोएम है कुबला खान एस.टी. कॉलेज का. वो इंस्पायर्ड था क्योंकि वो ओपियम पी के, मतलब ओपियम एक तरह से नशीला पदार्थ होता है, उनका सेवन करने के बाद एस.टी. कॉलेज सो गए थे और उनके बाद उससे इंस्पायर होकर उन्होंने पोइट्री लिख डाला था. तो एक तरह से ये फैंटास्टिक और यू कैन से मतलब फैंटेसी में उन्होंने ये पोइट्री लिख दिया, ठीक है. एंड ऑल्सो दे क्रिएटेड फिक्शनल वर्ड एंड नैरेटिव दैट वेंट बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द रियलिटी. तो जितने भी बहुत सारे फिक्शनल टाउन, फिक्शनल एंड आर्टिस्टिक चीज़ों के बारे में वो लिखते थे, है ना. इनसे इंस्पायर होते थे.
एंड ऑल्सो दे वर इंटरेस्टेड इन द फॉकलोर एंड द पास्ट। वो फॉकलोर और पास्ट मतलब क्लासिकल से काफ़ी इंस्पायर थे, जैसे जॉन कीट्स, जैसे ये अर्न है, ठीक है। तो एक पोएम है जॉन कीट्स का, इट्स कॉल्ड द ओड ऑफ द ग्राशियन अर्न। इफ यू गो लाइक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, गो एंड सर्च ओड ऑन अ ग्राशियन अर्न, ग्राशियन अर्न। ये जॉन कीट्स का पोएम है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल पोएम। आई थिंक आई रिमेंबर अ कपल ऑफ लाइन्स। इट्स समथिंग स्टार्ट्स लाइक दो स्टिल एंड ravished ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दो फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। सो बेसिकली ये जो अनराविस ब्राइड है, बेसिकली वो अर्न को कहते हैं। बहुत बहुत सुंदर पोएम है, यू शुड डेफिनेटली रीड दैट पोएम। एंड इसके अंदर क्या होता है कि रोमांटिक्स जो थे, दे वर इंट्रिग्ड बाय द फॉकलोर, मिथ एंड लीजेंड्स ऑफ द पास्ट। जो क्लासिकल पास्ट है उससे काफ़ी इंस्पायर्ड थे ये लोग, है ना। Now, next important characteristic is the exaltation of the common man। मतलब common man के जो thought होते हैं, common man का जो way of life है, उनके बारे में वो लिखा करते थे। जैसे कि romanticism championed the common people and their experience, often portraying the struggle and triumphs of the everyday individual। जो everyday लोग जो करते हैं, जैसे there is a very beautiful poem called the solitary reaper। आप उस poem को जरूर पढ़े, the solitary reaper, ठीक है। इट्स लाइक ऐसा पोएम, मतलब ऐसे स्टार्ट होता है जैसे कि वर्ड्सवर्थ घूमने जा रहे होते हैं, तो उन्होंने एक लड़की को देखते हैं जो कि रिप कर रही होती है ना, ग्रास को रिप कर रही होती है, और उसके ऊपर उन्होंने पोएम लिख दिया, और वो गाना गा रही होती है, तो इसके ऊपर उन्होंने पोएम लिख दिया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इमेजिनेशन, यू शुड डेफिनेटली रीड दिस पोएम, ओके। तो उनका जो आइडिया होता था, एंड ऑल्सो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, उन्होंने बोला था कि पोइट्री शुड बी रिटन फॉर द कॉमन मैन, पोइट्री शुड बी written in a way that every common man can understand। so उनका एक तरीका ही था, है ना, वो चाहते थे कि जितने भी कॉमन लोग हैं, जितने भी कॉमन पीपल हैं, वो पोइट्री को ईजिली समझ पाए, ठीक है। एक तरह से ये थॉट एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। सो वी कैन से द एक्सल्टेशन ऑफ द कॉमन मैन। ऑल्सो द पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंट्री, उन्होंने पॉलिटिकल और सोशल कमेंट्री यूज किया। उन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सोशल कमेंट्री के बारे में उन्होंने यूज किया। जैसे मैनी रोमांटिक राइटर यूज देयर वर्क्स टू कमेंट ऑन सोसाइटल एंड पॉलिटिकल इशूज़, जिसमें कि फ्रीडम की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं ना, इंडिविजुअल राइट की बात करते हैं, ठीक है। एंड दिस मोमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड पॉलिटिकल अपवेल्स ऑफ द टाइम एज वेल। याद है कि इसी समय क्या हो रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, है ना। इन लोगों का इंस्पिरेशन जो था वो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी इंस्पायर्ड था। And also, one of the major characteristic is the subjectivity and the introspection, ठीक है। अपने अंदर के थॉट को, अपने साइकोलॉजिकल थॉट को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को समझना। दिस वाज ऑल्सो अनदर मेजर पॉइंट, स्पेशली फॉर द रोमांटिक्स। नाउ लेट्स लुक एट some of the major figure in romantic literature। सो जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर का जो नाम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म, ठीक है। और इनका जन्म 1770 में हुआ और ही डाइड इन द 1850 एंड ही इज़ नोन फॉर हिज एम्फेसिस ऑन नेचर, सिंप्लिसिटी एंड एवरीडे लैंग्वेज। विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना था कि जो पोइट्री है, पोइट्री शुड बी रिटन फॉर द कॉमन मैन। हर कॉमन मैन को पोइट्री समझना चाहिए, पोइट्री इस तरह से लिखनी चाहिए कि हर कॉमन मैन उसको ईजिली समझ सके, ठीक है। नाउ ही पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड लिरिकल बैलेंस, जो कि पब्लिश हुआ था 1798 में, एंड दिस वॉज पब्लिश्ड अलॉन्ग विद द एस.टी. कॉलरिज। सो एस.टी. कॉलरिज वॉज अनदर फिगर, अनदर प्रोमिनेंट मेंबर, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। बाद में जाके उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई, लेकिन इनिशियली दे वर फ्रेंड, दे केम टुगेदर एंड दे रोट अ बुक कॉल्ड लिरिकल बैलेट्स, जिसके अंदर चार पोएम जो हैं वो एस.टी. कॉलरिज के हैं और बाद बाकी विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं। इसके अंदर इन्होंने एक तरह से थॉट एक्सपेरिमेंट किया, जो कि इन्होंने बोला कि आई एम राइटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ पोइट्री विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द न्यू क्लासिकल एज। और इस पोएम के अंदर मैंने कोशिश करा है कि अपनी थॉट, अपने इमोशंस को शेयर करूं ताकि हर कॉमन मैन इसको समझ सके। सो देयर एम्फेसिस स्पेशली वाज ऑन कॉमन मैन, ठीक है। एंड हिज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क वाज लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, which was published in 1798. Next word, I wandered lonely as a cloud, it's a very famous poem. The prelude is again very important poem. And then ode, imitation of immortality from early childhood. ठीक है। नेक्स्ट राइटर वॉज सैमुअल टेलर कॉलरिज, ही वॉज ऑल्सो अ फिलोसफर, ही वॉज अ ग्रेट थिंकर एज वेल। इन्होंने कोलैबोरेट किया था विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ लिरिकल बैलेंस में, ठीक है। एंड ही पायनियर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। मैंने
I have already made a video on romantic literary theory and criticism. Please go and check that out, जिसमें कि मैंने willing suspension of disbelief के बारे में बात करी है. ठीक है, you don't have to I don't need to explain this particular topic here. आप प्लीज़ वहाँ जाएं और देख लें. ठीक है, इट्स वेरी ईजी. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज लिरिकल बैलेंस, जो कि 1798 वर्ड्सवर्थ के साथ. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर. ये इसी में पब्लिकेशन हुआ था, लिरिकल बैलेंस में पब्लिकेशन हुआ था. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इज कुबला खान 1816 में, क्रिस्टबल 1816 में अगेन, बायोग्राफिया लिटरेरिया, दिस इज ए फिलोसॉफिकल वर्क जो कि पब्लिश हुआ था 1817 में, एंड एडिस टू रिफ्लेक्शन जो कि 1825 में. एंड इफ़ यू वांट दिस PDF, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाएँ वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर ले. आई विल प्रोवाइड दिस PDF फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू कैन ज्वाइन देयर. नाउ लॉर्ड बायरन ही वॉज अ रिनाउंड फॉर हिज रिबिलियस एंड पैशनेट पर्सोना. ठीक है, ये इन्होंने अपने पोइट्री के अंदर अपने थॉट को, अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को इन्होंने शेयर किया है. इनका पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है चाइल्ड हैरोल्ड पिलग्रिमेज, जो कि पब्लिश हुआ था 1812 में. ठीक है, नेक्स्ट वर्क इज डॉन वॉन 1819 से 1824 में. नेक्स्ट मैनफ्रेड, नेक्स्ट सी वॉक्स इन ब्यूटी, इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, गो एंड चेक दिस आउट. नेक्स्ट है द ग्योर, नेक्स्ट है द कोर्शियर 1814 में. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट राइटर हैं पर्सी बाइसी शेली, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फिगर. ही इज़ नोन फॉर हिज पॉलिटिकल व्यूज़, इमोशनली चार्ज विद पोइट्री. और इन्होंने एक वर्क पब्लिकेशन किया था जिसकी वजह से इनको ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल कर दिया गया था. ही रोट अबाउट एंटी क्राइस्ट, ही रोट अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है, नाउ ही मैरिड मैरी शेली. शी वॉज ऑल्सो a very prominent figure in literature because she wrote a very beautiful book called Frankenstein, जो कि हम आगे देखेंगे. Next important work is Ozymandias, Prometheus Unbound, Adonis, To a Skylark, Ode to the West Wind, जिसके अंदर एक बहुत सुंदर लाइन है. It says, if winter comes, can spring be far behind? It's a very beautiful line. You should definitely read this poem. And the next important work is The Chinchi. It's a play. Chinchi is a play which was published in 1819 by Percy Bysshe Shelley. Next important figure है John Keats. He was a celebrated poet and he wrote about sensuality, he wrote about sexuality, he wrote about इनके जो वर्क्स होते थे वो लिरिकल होते थे एंड काफ़ी इंस्पिरेशनल होते थे, काफ़ी रोमांटिक होते थे, काफ़ी नेचुरलिस्टिक होते थे. ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं ओड टू द नाइटिंगेल, ओड टू द ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन मेलनकली, एडिमियन, ला बेला डेम समरसी, टू ऑटम. दीज आर सम ऑफ द मेजर पोएम्स. नेक्स्ट है मैरी शेली. मैरी शेली ने एक वर्क लिखा था फ्रैंकलस्टीन, जिसका पूरा नाम है द मॉडर्न प्रोमीथियस, जो कि UGC नेट में भी क्वेश्चन आया है, व्हाट इज़ द फुल टाइटल ऑफ द फ्रैंकलस्टीन. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर थे रॉबर्ट साउदी, जिनका जन्म 1774 में हुआ था और 1843 में इनका डेथ हो गया था. एंड ही वॉज ऑल्सो अ पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग रोमांटिक पीरियड. इनका इंपॉर्टेंट वर्क में है थालवा द डिस्ट्रॉयर, द कर्स ऑफ खेमा, द लाइफ ऑफ नेल्सन, रॉड्रिक, द लास्ट ऑफ द गॉड्स. नेक्स्ट है हमारे थॉमस मोर एंड ही वॉज एन आयरिश पोइट. उसके बाद देयर फ्यू एसेइस्ट एज वेल. काफ़ी लोग सिर्फ पोइट्स के बारे में पढ़ के आगे निकल जाते हैं, बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द एसेइस्ट, है ना. कुछ ऐसे राइटर थे जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखा और काफ़ी फेमस एसेइस्ट हैं, जिनमें कि सबसे पहला नाम आता है विलियम हैजलिट का. इनका एक वर्क है ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोइट, टेबल टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से नेट काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज़ द स्पिरिट ऑफ द एज और द कंटेम्प्रेरी पोर्ट्रेट्स. नेक्स्ट हमारे राइटर हैं चार्ल्स लैम्ब, और एक और इनकी सिस्टर थी जिनका नाम था मैरी लैम्ब. ठीक है, इन दोनों ने मिलके शेक्सपियर के ऊपर काफ़ी सारे वर्क्स लिखे हैं एंड नेट ऑलरेडी पूछ चुका है वहाँ से क्वेश्चन, एंड दे विल नेवर गोइंग टू आस्क यू अगेन, बट यू नीड टू रिमेंबर कि चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब दोनों ने साथ में वर्क लिखा. And it's very important, because they actually wrote about Shakespeare for the children's. अब इनका इंपॉर्टेंट वर्क है एसे ऑन एलिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके पर्सनल एसेज के कलेक्शन है इसके अंदर. नेक्स्ट है द डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग. नेक्स्ट है न्यूयॉर्क सीव एंड ड्रीम चिल्ड्रन, अ रेवरी. नेक्स्ट हमारे जो राइटर हैं थॉमस डी क्विंची, ही वॉज ऑल्सो अ फिलोसफर एंड ही रोट अ वेरी ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर. इन्होंने अपना कन्फेशन लिखा है, अपने लाइफ के कन्फेशन लिखे हैं इस पर्टिकुलर बुक में, आफ्टर हैविंग द ओपियम. नेक्स्ट है ऑन मर्डर, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स. नेक्स्ट है सस्पिरिया डी प्रोफॉन्डिस,
लेवेना एंड आवर लेडीज ऑफ सॉरो। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे राइटर हैं ले हंट। इनका वर्क है द एग्जामिनर, द इंडिकेटर, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ले हंट। दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूँ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।